Welcome everyone. Good evening. Here we are back with another live VC happening on 38th of September. That is 30. Day is Tuesday. Time stands at 10:57 p.m. We are almost about to enter October in the next 1 hour 2 minutes. But the good news for us is we have already entered in October as per our trading environment. Cool. Now, what I mean by that is, as you know, we have ended the month of September today. Plus, we have also entered a new quarter, that is October, November, December. That is the last quarter of 2025. On that note, we just have to change out all our previous levels, which are marked, respective of monthly and quarterly. So I have did that already. It's already being done here on the pivot option chart. You can change that particular thing by tonight, or maybe while this particular session is on. Just keep on changing your level as well. Cool. And lock it. See, I have also many questions about how do we like keep this particular levels logged. तो अगर in case किसी को नहीं पता, you just click on this and इस पे आप click करके ना इसको lock कर सकते हो. This gets logged. Something like this. इसके बाद आप कितना भी उसको डिलीट करो या कुछ भी करो, doesn't matter. हाँ, बट इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है. If you have any drawings on the chart and when you're deleting it through this particular option, so just use no keep them. That will keep your all the logged item intact. ठीक है, तो in case अगर किसी को नहीं पता था तो this is your answer here. So moving on, uh, as I said, we have already moved to a new quarter and a new month. So let's first of all check what we have developed in accordance to our new month and new quarter as well. Going by CNX 500, firstly. So see, under CNX 500, this was the last, you can say, monthly pivot, which happened to be of the overall market. And we have seen what it has tried to perform, or how it has tried to, you can say, interchange as well. You see, in the last days of this particular month, we have seen a good fight to hold the bearish GPZ breach for the month of September, and it remained intact throughout the closing of September. So that's a good news for us. But will it be good for October or not? We have to check it out. And how can we check that? Everyone has part two, Pivot Boss part two. You just, in case if anyone does not know, then I'm saying this. You can just use this pivot points and just switch on to monthly. We will first check quarter, cool, and then we'll move on to our monthly as well. तो क्वार्टर में अगर हम एक चीज देखेंगे ना, so for quarter if you see, why is it not marking? Here it is. So for the next quarter, I will use this particular chart as well, ताकि आपको एक comparison पता चल जाए. And now we are good to go. See, now understand one thing very clearly here. Market has protected, or you can say market has uh, succeeded in getting the month of October as a free will to at least the whole of the market. Free will मतलब इसके ऊपर अब कोई बंधन नहीं है. I hope you're understanding that or getting that. How can we say that? Because now here we are seeing no sort of H3 or L3 in between the CPR that is happening for the month of October. Sorry, for the quarter, right? तो अभी आपको एक चीज पता होनी चाहिए. Till 2025 gets ended, we are good to move around freely. But how much freely, that will be decided by monthly, you can say, range as well. अभी हम उस पर बात करेंगे in a bit. So I hope आपको ये चीज तो बहुत ही clearly समझ आ गई होगी. But if we just add some
you can say, tadka to our analysis, let us use some observations here. First observation is we saw a good hold of previous HC zone. Cool. That means ये जितना भी previous quarter में, ये जितना भी 3 महीने में, that is from year अप्रैल से लेके इधर तक का आपका जो भी अपसाइड था वो इधर आके साइडवेज हो गया. Correct. So now we can say that we are at least, or we might remain in the high and low of the previous quarter. That is one. Second, हमें इतना तो पता है कि इसका मोमेंटम लॉस है. अब अगर हमें ये पता है कि इस क्वार्टर में अपसाइड का मोमेंटम लॉस्ट हो गया था, देन व्हाट कैन वी इंटरप्रेट फ्रॉम दिस? वी कैन इंटरप्रेट सिंपली प्रीवियस क्वार्टर का आपका अपसाइड लॉस्ट है एंड इस क्वार्टर में आपका नैरो सीपीआर है. इसका मतलब आपके प्राइमरी जो रेंज होंगे वो होगा H3 and L3. Sorry for the dark lines, but I hope you can adjust with that because that's needed. I'll try to make it again. So या फिर मैं इधर लाइन यूज कर लेता हूँ. This should do. So this is your H3 and this same goes for L3. Here. Now what is happening? The entire market cannot stay in this particular range. We all can definitely see that. Why? Because इधर ऑलरेडी हमारा एग्जॉशन तो है, बट कहीं ना कहीं अभी तक सेलर्स आने की कोशिश डेफिनेटली करेंगे. अब वो हमें कैसे पता चलेगा? वो हम मंथली रेंज से पता करेंगे, राइट? तो आई होप इधर तक तो सबको ही क्लियर है. बट वन थिंग टू ऑब्जर्व इज इन बिटवीन दिस जोन, दैट इज H3 से H4, इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं टू लेट्स से ऑरेंज. अब ये जो आपका एक जोन बना है ना, एंड लेट्स शेड दिस आउट एज वेल. इसको हम कर देते हैं ग्रीन. लेट्स से अ बिट डार्क ग्रीन. So this is where buyers will start to accumulate. इधर से आप याद रखिए, बायर्स एकदम से झटके से उठ के नहीं आएंगे. ऑल्दो आपको दिख रहा है कि नैरो सीपीआर का फॉर्मेशन है, बट देन टू वी विल नीड अ कंटिन्यूस ट्रिगर. अब वो कंटिन्यूस ट्रिगर कहां से आएगा? सिंपल है, हायरार्की रूल. हायरार्की रूल हमें क्या बोलता है? साइकिल 2, दिस इज डेली, दिस इज वीकली, दिस इज मंथली, दिस इज क्वार्टरली, दिस इज ईयरली. अगर हम अभी क्वार्टर पे है, ठीक है, तो हायरार्की रूल के हिसाब से हमें डाउन द फर्नल जाना है. तो डाउन द फर्नल में हम मंथ से लेके डेली तक जाएंगे. अभी हमें डेली की जरूरत नहीं है, ना वीकली की जरूरत है, तो बचा कौन? अब इस जोन में हमें जो ट्रिगर चाहिए रहेगा ना, इन दिस पर्टिकुलर जोन वुड बी ऑफ मंथली. एंड देन इफ वी नीड टू चेक एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम द मंथली, देन वी विल गो टू वीकली. So for the entire bullish side of the market, this is the zone where you have to check for any trigger of MH4 और WH4, दोनों में से कोई भी. या फिर इसके अंदर अभी हम आगे चल के देखेंगे, अगर इसी जोन के अंदर आपका YH3 या YH4 भी आ रहा है, तो दैट विल ऑल्सो लाइक सपोर्ट समवॉट, बट नॉट एट दैट पर्टिकुलर एक्सटेंट. फ्रेश बायर्स वुड बी this and then this. So make it a point that you keep a sharp eye on MH4 and WH4 constantly from tomorrow. So at max you can have 4 into 3, 12 observations to make in the entire quarter for week, and similarly goes for 3 observations for monthly players for the next quarter. So I don't think it is so hard to like check that. अब आप इसको कैसे चेक कर सकते हैं? जस्ट यूज द शीट, दैट्स इट. शीट पे आपके सारे
N500 एंड एवरीथिंग इज सॉर्टेड स्क्रीनर पे। उधर बस खाली आपको देखना का है कौन सा बुलिश में खड़ा हुआ है। अब उधर एक प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास अभी H3 के ऊपर वाला तो ट्रिगर है बट H4 के ऊपर वाला नहीं है। सो डजेंट मैटर, हम उसको अपग्रेड करेंगे बट दैट इज विद अ होल न्यू डिफरेंट कंसेप्ट। कूल, वो बात की बात है। बट H3 के ऊपर का तो ट्रिगर है, दैट मीन्स अगर H3 के ऊपर प्राइस है दैट इज अ बुलिश इंडिकेशन। तो आपको बस खाली इतना सा ध्यान रखना है, सबसे प्राइमरी स्क्रीन पे या स्क्रीनर पे आपको जब भी N500 में पिवट ट्रेंड बुलिश दिख जाए, पिवट ट्रेंड बुलिश दिख जाए, आपको इमीडिएटली आके चेक करना है MH4 या WH4 ट्रिगर तो नहीं हुआ है। या तो MH4 या WH4 ट्रिगर हो, या फिर आपका CPR का कोई स्ट्रक्चर ब्रीच हो जाए। What does that mean? In case, let's say we are having a monthly GPZ. So in that case, monthly bearish GPZ. So in that case, the GPZ should be breaching out. Cool. So I hope you are getting a fair point of what I'm trying to say here. अब आप बोलेंगे कि मुझे इसी चीज को स्क्रीनर से चेक करना है। हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। कैसे? जो अभी हमने इधर डिस्कस किया वही चीज आप सेम फॉर निफ्टी 50, बैंक निफ्टी एंड मिड कैप, इन तीनों के लिए आप चेक करेंगे पिवट ट्रेंड को। पिवट ट्रेंड आपका फ्रेंड होगा फॉर दिस पर्टिकुलर क्वार्टर विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो, क्योंकि हम मार्केट को बुलिश साइड में देखना चाह रहे हैं इसकी वजह से। सेम गोज विद बेरिश, बट बेरिश में प्रॉब्लम क्या है कि बेरिश में आपका जो रेंज है वो काफी बड़ा है। काफी बड़ा है क्यों? क्योंकि आपका अगर आप देखेंगे L3 एंड L4 तो हम ले सकते हैं, बट उससे पहले हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बैठा हुआ, दैट इज प्रीवियस क्वार्टर का L3। आप देखेंगे इधर ही कहीं डबल बॉटम स्ट्रक्चर बना के अब फेल होके नीचे आया। सो इफ इट गेट्स ट्रिगर अगेन देन इट वुड बी अ प्रॉब्लम। सो टेक्निकली हमारा बेरिश साइड का ट्रिगर क्या होगा? आपके पिवट ट्रेंड पे आपको रेड नहीं दिखना चाहिए, बेरिश नहीं दिखना चाहिए। सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग वन गुड थिंग इज कि आपको N500 पे थ्रू आउट द क्वार्टर कितना कितना टाइम लगेगा स्क्रीनर खोलने में, जितना टाइम लगता है, एंड हार्डली 2 या 3 seconds टिल द टाइम यू spot N500 and then check the respective column or row for that particular thing. पिवट ट्रेंड को आपको क्वार्टरली में जाके देखना, दैट्स इट, इतना सा ही काम। एंड सिमिलरली उसके थोड़ा सा बाजू में, थोड़ा सा क्या नेक्स्ट एडजेसेंट में मंथली होगा। सो आपको मैं इसलिए इतना डेप्थ में लेके जा रहा हूं ताकि आपको जब वो ट्रिगर आपके स्क्रीनर पे रहेगा तो आपको पता होना चाहिए एट द बैक ऑफ द माइंड कि एक्चुअल में सिनेरियो क्या है। And only one thing is for sure, market will be in a bullish trend only and only if we are getting a trigger of any MH4, mostly MH4 पे ही ध्यान रखेंगे हम। अगर हमें MH4 का ट्रिगर मिल रहा है, WH4 का ट्रिगर मिल रहा है इन बिटवीन दिस पर्टिकुलर जोन, एंड वो कंजिक्यूटिव होना चाहिए। MH4 डेफिनेटली एक ही बार पॉसिबल है, या मे बी अगर हम बहुत ही एक्सट्रीम साइडवेज हो गए, फॉर लेट्स से एक्सट्रीम साइडवेज मार्केट हो गया अक्टूबर में इन बिटवीन H3 एंड L3, QH3 and QL3, then there are chances कि we will or we can hit 2 consecutive MH4 or 2 consecutive ML4s. Cool guys, so I hope that thing is very much feasible to everyone. So currently हमारा जो अभी bias रहेगा for the next quarter is sideways to bearish. That's it. Simple and straight. और बेरिश भी हमें पता है कहां पे है, सिंपल है L3 के नीचे। बेरिश का तो एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, स्क्रीनर पे बस आपको खाली 2 सेकंड में पता लग जाएगा कि मार्केट नीचे की तरफ कंटिन्यू कर रहा है कि नहीं। एंड हाउ इज दैट? यू जस्ट गो एंड चेक इफ द पिवट ट्रेंड फॉर द क्वार्टर स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो इज टर्निंग रेड। इफ इट इज रेड, it's an alarm, it's a siren. Cool. So I hope you got the picture of what is going to happen in the next quarter as well. बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। एंड देखिए इतने ही वोलेटाइल मूव्स अब आपको मिलेंगे। दिस इज गुड फॉर ऑप्शन बाइंग मार्केट।
हम बहुत ही अच्छे स्ट्रक्चर पे खड़े हुए हैं जहां पे हमें विक्स भी वापस से, आप देखें विक्स कहाँ पे आके खड़ा हो गया. इफ यू जस्ट हैव अ क्विक look, VIX is somewhere around 11. It might turn down to 12 or 12.5. तो अपनी नॉर्मलाइज रेंज में बाउंड्री तक तो ये आ चुका है. अब बाउंड्री के अंदर जाना है इसको बस. एंड हार्डली दैट विल टेक सम टाइम फॉर इट. एक ड्रॉ डाउन और एंड विक्स कैन राइज 3-4% एंड द जॉब इज डन. कूल. अगर आप समझे 2 दिन भी या एनी 2 सेशंस आउट ऑफ 60, एक महीने में 20 ट्रेडिंग सेशन होते हैं. अगर 60 सेशन में से आपको कोई भी 2 सेशन विक्स के नीचे, मार्केट नीचे की तरफ और विक्स शूट अप कर गया 5-6%, 4-5% के 2 सेशन चाहिए बस, एंड इट विल रिवर्ट बैक टू इट्स फेयर वैल्यू रेंज. उसके बाद मार्केट इज वेल प्लेस्ड टू बी वोलेटाइल एंड इट इज गुड फॉर ऑप्शन बायर्स. So final verdict would be the upcoming quarter will be good for option buyers, but you have to be very selective. Remember that. बहुत ही niche type of categories चलेंगी. Not everything can give you a return. If you are willing to take return on everything, just be invested in respective indices के ETFs. But you know ETFs में आपको low risk है और low return ही है. Cool. स्टॉक्स के बारे में तो आपको पता चल जाएगा बिकॉज वी विल बाय द टाइम in this month probably. I'm not announcing anything right now. In this month probably you can have announcement of cycle for any time. Cool. And we will have a very different approach to that, but आपको stocks के बारे में तो पता चल ही जाएगा. I'm not going into depth of that because that has to do something with we can say something with a very new aspect, but वो हम डिस्कस करेंगे बाद में. So that is your whole you can say view for quarter. Now coming to month, हम थोड़ा इसी पे ब्रीफ करते हैं ताकि जब हम निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड मिड कैप पे जाएंगे तो वो हम विद इन लाइक 15 to 20 seconds में हम मींस वी कैन वाइंड दैट पर्टिकुलर थिंग ऑफ, राइट. सो we will go in depth with our, you can say, quarterly and monthly aspect of CNX 500. So let's quickly move down to monthly. So in order to move to monthly, just switch back, turn on your part 2 and switch back to month, and you will get the values for next month. And similarly come here to have a fair, you can say, understanding of what the market is trying to do. अब आपको इधर एक चीज तो समझ आ गई होगी. Let me clear all these things off. Give me a second. And these things as well. Okay, let's go. So now you can understand one thing for sure here. That is, the upcoming month is almost बोलते ना, that dialogue of movie Kick by Nawazuddin Siddiqui, मौत को छूकर टक से वापस आ. It's like almost on the borderline. ये आप देखो, अगर थोड़ा सा और नीचे क्लोज होता ना मार्केट, हल्का बहुत भी नीचे, ये बेरिश जीपीजेड हो जाता है. मतलब आपको ट्रिगर्स एंड स्क्रीनर्स पे बेरिश जीपीजेड ही दिखता. बट इज इट अ बेरिश जीपीजेड और नॉट? वी विल कंसिडर दिस टू बी अ बेरिश जीपीजेड बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट अ नेग्लिजिबल डिस्टेंस. तो ये जो मंथ है वो आपका बेरिश जीपीजेड की तरह ही एक्ट करेगा, राइट. सो इन दैट केस वी हैव अ गुड रेजिस्टेंस ऑन द अपर हैंड. तो क्वार्टर में तो हम देख रहे थे ये जोन को. We were seeing that if this zone gets into play, then we can see some good movement. Absolutely right. And इधर हमारा H4 भी है. Cool. इधर हमारा H4 का ट्रिगर भी रेडी है. बट वो हिट करने से पहले you have a very 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 good opportunity. See, I am seeing all over media right now कि
दिवाली रैली आ सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, बट फ्रॉम वेयर, हाउ, व्हेन, हु नोज दैट? वी नो दैट। हाउ? जस्ट कीप इन, अभी तो मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए, आपको खाली और खाली इस पे ध्यान देना है, ब्रीच ऑफ मंथली पिवट। व्हाई आई एम सेइंग दैट? जस्ट ट्विस्ट योर आईज अ लिटिल बिट एंड चेक। ये मंथली पिवट था, वो एग्जैक्टली प्रीवियस मंथ का H4 का ऑप्शन था। दैट सिंपली मीन्स इधर से ही एक अग्रेसिव बाइंग आपको देखने मिली थी, और इधर से ही जो लॉन्ग टर्म बायर्स है वो शायद से ट्रैप हो सकते हैं। एंड इफ दे आर, देन दे विल डेफिनेटली ट्राई टू गिव अ पुश जस्ट बिफोर गोइंग डाउन। एंड इसका डाउन साइड क्या है? अब आप देखिए, इधर ही L3 था क्वार्टरली का, ये वाला। थोड़ा सा दिमाग वापस से लगाइए, जैसे हमने क्वार्टरली में HC जोन पकड़ा हुआ है, ये वाला, वैसे ही हमारे पास मंथली में LC पड़ा, प्रीवियस मंथ का, समथिंग लाइक दिस। कूल? बी इट एनीथिंग, एनी मीन्स एनीथिंग, कल उठ के वॉर हो जाए, न्यूक्लियर अटैक्स हो जाए, लेट्स से ट्रेड टैरिफ्स बढ़ जाए, यूरोप एंटर्स, चाइना एंटर्स, इंडिया रिटेलिएट्स, रशिया एटसेट्रा एटसेट्रा, कुछ भी होना दो, until this zone is broken, we are not going anywhere, or we are not going in any continuation of selling. What I mean by that is, already हमारा bearish GPZ for the last month is sustained, and here, according to the previous month auction, we are just carrying it in this month for just that particular time till we have a touch or a break of this particular zone. And why are we taking this particular thing? Because हमें इससे ये पता चल रहा है कि लास्ट मंथ में इधर हमारी बेरिश जो ट्रेजेक्टरी थी, इधर से कैरी फॉरवर्ड हो सकती थी, या सेलिंग प्रेशराइज हो सकती थी, राइट? तो हम वही जोन को वापस से कंसिडर करके रखेंगे। इफ दिस जोन ब्रेक्स, गेम ओवर। गेम ओवर मीन्स अब मार्केट में सेलिंग प्रेशर और आपको अग्रेसिव दिख सकता है, राइट गाइस? सो I hope this thing is very very simple to understand. Nothing is rocket science here. हमें ट्रिगर भी पता चल गया, हमें अब एग्जैक्टली फॉर द नेक्स्ट मंथ, फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, हमें ये भी पता है कि बेरिश ट्रिगर कहाँ पे है एंड बुलिश ट्रिगर कहाँ पे है। बट वन गुड थिंग इज, अगर मार्केट रिवर्स बैक हो जाता है, क्योंकि अब पूरा मार्केट वही एंटिसिपेट करेगा, वी आर एंटरिंग इनटू द मंथ ऑफ पीक, यू कैन से फेस्टिव सीजन। आपका दशहरे के बाद तो लाइन लगेगा, वेडिंग सीजन भी चालू हो गया, ऑलमोस्ट चालू हो जाएगा आफ्टर दशहरा, राइट? सो यू कैन सी अ गुड पिकअप इन डिमांड, बट दैट इज अ वेरी डिफरेंट स्टोरी। हमने ऑल्दो इसको शॉर्ट में कवर किया है कि डिमांड पर्सपेक्टिव से इंडिया क्या कर रहा है, हमने पूरा उसके बारे में एक शॉर्ट में डिस्कस किया, बट ऑल्दो अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो बाकी है विद कंटेक्स्ट टू ऑटो, FMCG। मैं एक इनसाइट शेयर करूंगा इस VC के बाद, अगर इन केस मैं नहीं करूं तो मुझे आप याद दिला देना, जस्ट मैसेज मी इनसाइट करके, आई विल शेयर यू a pic in which you will understand in the past, you can say 10 to 12 years, how the industries have rotated. ठीक है? तो उसके बारे में हम कभी एक सेशन में बात कर लेंगे, नो डाउट इन दैट, बट अभी वो टाइम नहीं है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज, वी हैव अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, बिकॉज हमें एक चीज पता है, आज पिवट ट्रेडर्स, ऐसा ही कुछ होएगा तब भी जाके आपको इधर अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। सो लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली राइट नाउ, ये जोन आप मार्क करके रख लो, अलर्ट लगाना है, आपको ट्रैक करना है तो चार्ट पे मार्क कर लो, सम जोन और लाइन जो भी आपको मार्क करना है, जैसे आपको ठीक लगे। ये चार्टिंग मतलब, ऑल्दो आई विल शेयर दिस पर्टिकुलर थिंग, मैं अभी शेयर कर दूंगा इसका लिंक,
ताकि आपके रिकॉर्ड में भी रहे। बट आपको वो पता होने के लिए पता भी होना चाहिए कि हमने क्या क्या रेफरेंसेस लिए हों, राइट? सो आई होप दिस थिंग इज फाइन। अब ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर मार्केट को रिवर्स बैक करना है इनटू द बुलिश टेरिटरी, तो ये वाला लेग जो है ना, ये वाला, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। या फिर इसको भी छोड़ दो और सिंप्लीफाई कर देता हूं मैं आपके लिए। अब जैसे हायरार्की रूल था, हमने देखा कि हम क्वार्टरली के नीचे मंथली देख रहे थे। अब आपको इसी जोन में, दैट इज 22,920 से लेके 23,020, 200 पॉइंट का जोन है रफली। कुल नहीं, 200 पॉइंट भी नहीं है, 100 पॉइंट का ऑलमोस्ट, हार्डली 100 पॉइंट्स। इन 100 पॉइंट में आपको कहीं पे भी WH4 का ट्रिगर दिख जाए, या फिर इस रेंज के अंदर आपको कहीं पे भी सीपीआर, वीकली सीपीआर ब्रीच होता हुआ दिख जाए, दैट्स योर गो हेड फॉर लो रिस्क हाई रिवॉर्ड अपसाइड। और वो अपसाइड कहां पे आप देख सकते हैं? फर्स्ट इनिशियल रेजिस्टेंस जो आएगा वो आपको आएगा H3 पे, कहीं ना कहीं QH3। अगर उसको तोड़ते हुए निकल गया तो सीधा लैंडिंग इसकी इधर ही होने वाली है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यू कैन से 300 पॉइंट्स ऊपर। मार्केट में लोग इसको कैसे देखते हैं? आई गेस RR से देखते हैं ना, रिस्क टू रिवॉर्ड। लगा लीजिए, अगर हम इधर एब्सोल्यूट इधर पकड़ के चलते हैं, 23,000, 100 पॉइंट का रिस्क है, 300 पॉइंट का रिवॉर्ड है। हाउ मच इज दैट? 1:3। Although I do not support this theory of RRs, I always support return on capital deployed. The best metric, or you can say the real time metric, through which you can see multiple things. Reality check होगा आपका, right? So, but मैंने आपको दोनों perspective से बता दिया। So whatever you now feel right to do, आपको let's say alert mark करके रखना है, स्क्रीनर पे ये लेवल्स आपको याद रहेंगे तो स्क्रीनर पे चेक कर सकते हो। एनी विच वेज, वट एवर यू नीड टू डू, यू कैन डू। या फिर अगर आपने अलर्ट लगाया, वेल एंड गुड। या फिर अगर आप स्क्रीनर पे भी कभी देख रहे होगे, तो अब सबसे बेस्ट जो आपका ट्रिगर रहेगा थ्रू आउट अक्टूबर, स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो, कहीं पे भी अगर आपको N500 स्क्रीनर पे कॉलम आप रो दिख जाएगा N500 का, N500 के रो में आपको पिवट ट्रेंड देखना है। पिवट ट्रेंड में अगर आपको मंथली बुलिश होता हुआ दिख जाए, जिस भी दिन या जिस भी टाइम, हर दिन में अगर आप देख रहे हो, इट्स वेरी वेरी गुड। आई रिकमेंड दैट, हेड्स अप फॉर दैट। बट इनकेस अगर आप मिड इंटरवल में भी देख रहे हो, तो देखिए, मैं तो बोलूंगा रोज ही देखिए, बिकॉज कितना टाइम लगता है स्क्रीनर को देखने में। आई हियर मेनी मेनी रीजंस, ये है वो है, ट्रैवल टाइम है, ठीक है, VCs नहीं अटेंड कर सकते लाइव, दैट इज एक्सेप्टेड। बट स्क्रीनर तो यार, आप सुसु ब्रेक भी लेने जाते हो तो भी कितना टाइम लगता है आपको? हार्डली 5-10 मिनट्स तो आप उसमें भी टाइम पास करते हो, राइट? तो एटलीस्ट इट टेक्स लेस देन 1 मिनट टू टेक अ स्कैन। एंड अगर आपने ये VC अटेंड कर लिया है, जिसने कर लिया, वेल एंड गुड। जो करेगा वो बाद में देख लेंगे। बट एटलीस्ट आपके बैक ऑफ द माइंड में रहेगा कि मुझे क्या ट्रिगर के टाइम देखना है, और ट्रिगर आया है तो मुझे क्या क्या चीजें फटाफट से जाके चार्ट्स पे देखनी है, राइट? सो द बेस्ट ट्रिगर फॉर द मार्केट is right now standing at H3 of this particular month, या उससे भी पहले अगर आपको ट्रिगर चाहिए तो पिवट पे लगा लो। दैट इज व्हाई आई सेड एनी विच वेज, अगर आपको अलर्ट लगाना है तो पिवट पॉइंट पे लगा के रखो, मंथली पिवट पे, दैट इज अराउंड अबाउट 29,000, 22,920। एंड सिमिलरली अगर आप स्क्रीनर पे देखना चाहते हो, यू आर जस्ट विलिंग टू टेक अ सेफ बेट, नॉट टू रिस्की, तो फिर आप कहीं ना कहीं H3 पे आके अपना स्क्रीनर पे ही चेक कर सकते हो। नो नीड टू सेट एन अलर्ट। या फिर अगर आपको दोनों चीजें करनी है, दोनों चीजें करनी। आई होप द टास्क इज क्लियर, सो यू हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट द नेक्स्ट मंथ इज लुकिंग लाइक एंड व्हाट द नेक्स्ट क्वार्टर इज लुकिंग लाइक टिल द एंड ऑफ। अब हम सीधा जब नेक्स्ट क्वार्टर की बात करेंगे तो हम नए साल में, अंडरस्टैंड दैट, राइट? एंड डू नॉट फॉरगेट, लास्ट क्वार्टर इन इंडिया इज डेफिनेटली, जैसे एक रिले रेस होता है ना, हमने बहुत बार इसके बारे में बात की हुई है। रिले रेस में
चार पार्टिसिपेंट्स होते हैं, एक दो तीन चार, 400 मीटर की होती है मोस्टली। तो ये पहले तीन तो ठीक, पहले तीन ऑल्दो एवरी प्लेयर इज इंपॉर्टेंट, बट फर्स्ट टू सेकंड हो सकता है थोड़ा बहुत फास्ट जानो आपको, सेकंड टू थर्ड थोड़ा एनर्जी प्रिजर्व करने के लिए आप हल्का बहुत स्लो या फास्ट मिड हो सकते हो। बट एंडिंग में आते आते ना क्वार्टर थ्री, या सॉरी प्लेयर थ्री को बैटन पास करते करते आपको एकदम फास्ट स्पीड पकड़नी होती है, क्योंकि आप जितना जल्दी इसको दोगे बैटन, ये उतना जल्दी अर्ली स्टार्ट लेगा एंड क्वार्टर फोर के पास, प्लेयर फोर के पास पहुंचेगा। एंड प्लेयर फोर का खाली और खाली काम है टू पिक अप पेस, दैट्स इट। ना आगे देखना ना पीछे देखना है, बस जैसे ही बैटन हाथ में आए भागो, एंड जस्ट स्टॉप अंटिल द फिनिश लाइन, अंटिल यू क्रॉस द फिनिश लाइन। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा मैं क्या डिपिक्ट करने का कोशिश कर रहा हूँ। वी आर एंटरिंग इन, वी हैव एंटर्ड एक्चुअली, अब तो सीधा हम खुलेंगे ही फोर में। तो आप समझ लो कल 1 अक्टूबर बैटन पास होने जा रहा है टू प्लेयर फोर। प्लेयर फोर का ओनली एंड ओनली मोटिव इज रन, नो मैटर व्हाट। अब वो बात की बात है कि ये भागते भागते इसका पैर ट्रिप हो जाए, नस चढ़ जाए, मोच आ जाए, तो वो डिस्qualify हो जाए, रेस डिस्qualify इन द सेंस रेस में धीरे हो जाए, बाकी के प्लेयर्स आगे निकल जाए। दैट इज व्हाट इज अ हिंड्रेंस एज मंथली पिवट, वीकली पिवट, वो आपको बताता रहेगा, और वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। एक लाइव रेस में आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि इसको भागते भागते मोच आ जाएगा, बट इधर हम वो चीज कर पा रहे हैं। हम देख पा रहे हैं कि इधर तेरे को थोड़ा ध्यान से देख के चलना पड़ेगा, ध्यान से भागना पड़ेगा। हो सकता है इधर कुछ अनलेवलिंग ऑफ ग्राउंड हो, जिसकी वजह से आप एक हल्का बहुत लेवल अप ले सकते हो इन योर रनिंग, और वाइल यू आर रनिंग एट योर फुल स्पीड, राइट। तो हमने वो सब डिस्कस कर लिया है कि आपको क्या करना है, और ये होगा आपका जस्ट फिनिश लाइन से पहले। आपको पता है आपको फिनिश लाइन आपकी ये है, क्यों? फॉर द बुल्स टू गो इन अल्टीमेट शॉट कवरिंग फेज, अल्टीमेट। इधर के बाद तो न्यू 52 वीक आए, एंड मोस्टली अगर हम ये पर्टिकुलर जोन को तोड़ रहे हैं ना, तो मोस्टली वी विल गो फॉर अ न्यू ऑल टाइम हाई। आई होप दिस थिंग इज गेटिंग क्लियर टू एवरीवन। ठीक है ना, इसको हमने समझने में ऑलमोस्ट अच्छा खासा आधा 30-35 मिनट्स लगाए हैं, ताकि यू आर सॉर्टेड फॉर द नेक्स्ट 90 days, 90-91 days, राइट गाइस। सो दिस इज योर होल प्लान ऑफ एक्शन। अब इसी के थ्रू हम स्टॉक्स भी फिल्टर कर सकते हैं। बस आपको खाली ये ध्यान रखना है कि कौन से स्टॉक्स H3 का ट्रिगर दे रहे हैं। कैसे पता चल जाएगा? सिंपल, स्क्रीनर पे जाओ, हर दिन आप देख सकते हो। हर दिन क्या, एवरी मिनट एवरी सेकेंड यू कैन सी द स्क्रीनर। जो ऑफिस है, ऑफिस गोइंग है, आप तो एक्सपर्ट हो इसमें। बिटवीन स्विचिंग टैब्स, एक टैब चालू रखो स्क्रीनर का, कौन देख रहा है, या अपने फोन पे रखो। एंड वन वियर्ड, वियर्ड तो नहीं है एक्चुअली, इट इज ट्रू। समवन समवन वाज यूजिंग हिज ऑफिस इंटरनेट, एंड उस पे आई थिंक वो ट्रैक हो जाता है आप क्या क्या सर्व ब्राउजर सर्व कर रहे हो। सो उसके लिए भी चीजें सिंपल है यार, यूज मोबाइल डेटा, राइट। तो हो जाएगा उससे। एंड स्क्रीनर देखने में टाइम नहीं लगता यार, इट हार्डली टेक्स 1 minute। 1 minute भी मैंने बहुत ज्यादा हो गया, 30 seconds भी उससे भी कम होता है। 10-15 seconds में यू आर डन। एक लोडिंग टाइम है 1 or 2 seconds, वो तो डिपेंड करता है आपके इंटरनेट पे। लोड होने के बाद हार्डली 1 or 2 seconds टू स्पॉट N500 एंड द रो, एंड उसके बाद 1-2 seconds और टू जस्ट सी व्हाट इज हैपनिंग, दैट्स इट। उतना ही डबल अप कर लो, 6 seconds प्लस 6 seconds, हाँ, मैक्स टू मैक्स 15 seconds, उससे ज्यादा नहीं। राइट गाइस, सो आई होप दिस थिंग्स आर क्लियर। नाउ मूविंग ऑन टू हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑल दिस थिंग्स हैपन। हम एक डायरेक्टर हैं, हमने फिल्म तो डायरेक्ट मतलब नरेट कर दिया आपको कि इधर हीरो आएगा, इधर विलन खड़े होंगे, विलन को मार के हीरो को निकलना है, राइट। इधर आपका क्लाइमैक्स शुरू होगा, और सरप्राइज बोलते हैं ना, केमियो, केमियो एंट्री आपकी कहाँ पे हो सकती है? कहीं पे इधर। कैसे?
अचानक से हो सकता है हम गैप डाउन दे दें इस जोन के नीचे। एंड दैट अगर अच्छा हाँ, अ वेरी गुड पॉइंट। अगर आपको ये जोन के नीचे से अगर गैप डाउन मिलता है ना, तो समझ जाना बहुत ही ज्यादा कुछ ऐसा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है मार्केट में जो मार्केट को पता है बट रिटेलर्स को अभी तक पास ऑन नहीं हुआ। वो एक दो दिन में मैक्स टू मैक्स बाहर आ जाएगा, इनकेस अगर ऐसा कुछ आपको होते हुए दिखे। इट्स अ वेरी बेरिश सिग्नल फॉर द मार्केट, so understand that, right? So we will continue with Nifty, Bank Nifty, and mid cap, and some other info in the next part two. So join back. अभी 10 सेकेंड में खत्म हो जाएगा, तो हम वो पार्ट टू से फ्रेश शुरू करते हैं, राइट? सो जॉइन बैक इन पार्ट टू, वी विल कंटिन्यू देयर. Welcome back, Twisters. Here we are back with part two of the same VC happening on 30th of September. Day is Tuesday. Time stands at 11:37 p.m. So here we are speaking of CNX 500. We have discussed about a proper plan of action for the next 90 days. You are sorted for 90 days. अब हम बात करेंगे कि कौन रिस्पॉन्सिबल है. ये तो हमने पूरा मतलब बोलते हैं ना एक स्क्रिप्ट, हार्ड बाउंड स्क्रिप्ट सुना दिया एज अ डायरेक्टर. अब बारी आएगी हु इज गेटिंग कास्टेड, और जो कास्ट हो रहा है वो किस रोल में काम करेगा. फॉर एग्जाम्पल हीरो के रोल में कौन है, हु इज द हीरो यर, मोमेंटम. क्योंकि अगर हमें तोड़ना है तो कहीं ना कहीं मोमेंटम की जरूरत है. तोड़ के फटाफट ऊपर जाना है 90 दिन में. आप समझो आपको 90 दिन, सॉरी 60 डेज में आपको ये सारी चीजें कंप्लीट करनी है. और 60 डेज में भी आप यू विल हैव 61 डेज टू बी वेरी स्पेसिफिक, बिकॉज दिवाली का एक मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन भी आएगा इस क्वार्टर में, 1 घंटे का. तो उसमें भी जनरली मार्केट ऊपर ही रहता है या साइडवेज रहता है, नेगेटिव तो हार्डली रहेगा मार्केट. तो 61 डेज में से भी सब्ट्रैक्ट ऑल द हॉलीडेज विच आर कमिंग. लेट्स से वी आर हैविंग 55 डेज. मैंने 5 हॉलीडे गिन के सब्ट्रैक्ट कर दिए. 55 डेज में अगर आपको या इंडियन मार्केट्स को एक न्यू 52 वीक हाई या फिर एक न्यू ऑल टाइम हाई बनाना है, तो यू नो दैट वी नीड मोमेंटम. क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर हमें पता है कि कहाँ और कैसा दिख रहा है. हमारे पास इस मंथ का एक बुलिश बेरिश जीपीजेड है जो हमें तोड़ना है. ऑल्दो इट इज नॉट अ बेरिश जीपीजेड, बट वी आर कंसिडरिंग इट टू बी अ बेरिश जीपीजेड, राइट? नेक्स्ट इज हमारे पास ये तोड़ने के बाद भी काफी सारी चीजें हैं टू फॉलो अप. उसके बाद जाके हम ब्रेक फ्री करेंगे. उसके बाद जाके फिर हम एक और जोन पे आएंगे फाइनली, जहाँ पे ये जोन में आ गए तो 52 वीक हाई. इसके ऊपर चले गए तो फिर आपका डेफिनेटली एक न्यू ऑल टाइम हाई तो बन ही जाएगा फॉर श्योर. बट वो एक्सटेंड बहुत रैपिडली होगा. एंड इफ यू रिमेम्बर गाइस, जब हम ये फॉल के बारे में बात कर रहे थे इन प्रीवियस आई कैन से 5-6 वीसीज से, हम यही चीज बोलते आ रहे हैं कि अक्टूबर इज ऑल्सो गोना रिमेन साइडवेज टू बेरिश मोस्टली. एंड वही चीज आपको अभी एंडिंग में होते हुए दिख रही है. अगर आप इसको तोड़ना है तो कैसे टूटेगा वो सब हमने डिस्कस कर लिया. नाउ लेट्स क्विकली मूव ऑन टू आवर फर्स्ट थिंग, दैट इज निफ्टी 50. अब इधर से हम थोड़ा फास्ट जाएंगे बिकॉज हमने ऑलमोस्ट सब कुछ डेप्थ में कवर किया है. तो अब मैं इधर से हल्का बहुत फास्ट जाऊंगा. एंड यू कैन, अगर आपको इनकेस ज्यादा स्पीड लग रहा है तो इस वीसी को आप एक बार वापस देख के रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि 90 दिन के लिए वैलिडिटी है. एनी विच वेज यू कैन रेफर इट एनी टाइम ऑफ द डे अगेन एंड अगेन. अब मोमेंटम में प्रॉब्लम क्या है? मोमेंटम तो हमें वन वे दिख रहा है, that is a bearish GPZ. Okay, just before starting this, we will start with quarter. The next quarter for Nifty 50, what it is looking like? Bearish GPZ. I hope आपको समझ आ गया होगा हमने CNX 500 पे इतना टाइम क्यों स्पेंड किया. आपका मोमेंटम ही डेड है फॉर श्योर, 101%. Why I can say that? Just seeing the GPZ. क्वार्टर का जीपीजेड है. इसका एक मतलब तो ये है, द गुड थिंग इज थोड़े बहुत ऑब्जर्वेशन आप इधर अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा फॉर द नेक्स्ट 10-15 मिनट्स. प्लीज कीप योर सेल्फ अलर्ट ऑन एन अलर्ट मोड बिकॉज ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा. फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, ये आपका पिछले क्वार्टर का एचसी है.
तो हमें इतना तो पता है कि इसके ऊपर ही जाके हमें कहीं ना कहीं अब एक अपसाइड मोमेंटम मिलेगा। वेयर इज दैट? 25,500 600। अभी मैंने बहुत ही रफ मार्क किया, आप एग्जैक्ट मार्क करके देख लेंगे। 25,500, राइट? कहाँ है अभी हम? उधर से ऑलमोस्ट 900 पॉइंट दूर। बट वो 900 पॉइंट दूर में भी आपको कितने सारे रेजिस्टेंस है वो आप खाली इधर देख के रखो, राइट? सेकेंड पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, आपका H4 फॉर दिस पर्टिकुलर क्वार्टर, आई एम नॉट, hear me out again, I'm not speaking of 1 day, 2 day, 3 day. I'm speaking a perspective of 91 days, नॉर्मल कैलेंडर चार्ट। बट अगर हम ट्रेडिंग सेशंस की बात करें, 61 डेज की बात कर रहे हैं। सो इट इज इंपॉर्टेंट, राइट? 61 डेज का अगर आपका बुलिश जो ट्रिगर है वो सिर्फ और सिर्फ 25,300 क्रॉस करने के बाद ही आ सकता है। दैट मीन्स अगर निफ्टी 500 आपका मंथली बेरिश जीपी से तोड़ रहा है, तो बी रेस्ट अश्योर्ड कि निफ्टी 50 को एट पार सीएनएक्स 500 के चलना होगा या फिर उसको आउट परफॉर्म करना होगा। अब अगर उसको वो चीज करनी है तो क्या करना है? वन थिंग इज रिटन ऑन दिस पर्टिकुलर चार्ट, इसको ऐसा कुछ करके ही जाना है, ऐसा ही जाना है। देर इज नो अदर वे आउट, नो एस्केप रूट, especially Nifty. And Nifty stands to be a momentum trigger for our Nifty 500 according to our custom made theory. तो आपको एक चीज तो पता है कि जब तक आपको निफ्टी में क्वार्टरली जीपीजेड रीच होता नहीं दिखेगा, forget about bulls और forget about momentum. Straight, simple, 101%. तो what does that mean? It gives you a good opportunity कि अब लोअर टाइम फ्रेम पे अगर आपको जब भी थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचिए, इधर ऑप्शन सेलर्स का ज्यादा फायदा है। व्हाई? बिकॉज दे नो इट दैट शॉर्ट शॉर्ट अब जब तक ऐसा लेग आपको नहीं मिलता तब तक तो मार्केट इस पर्टिकुलर क्वार्टर के लिए बेरिश है। सॉरी, निफ्टी 50 इस पर्टिकुलर क्वार्टर के लिए बेरिश है। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये जोन में जितनी भी स्ट्राइक्स आएंगी इन बिटवीन 24,850 से लेकर 950, 100 पॉइंट के बीच, आप वेरीफाई कर सकते हैं अपने ओआई डेटा चार्ट्स पे, जिस जिस तरह से आप करना है। ये 100 पॉइंट के बीच में आप मैक्स टू मैक्स डेवलपमेंट होते हुए देखोगे। क्योंकि हम सेलर्स की बात करें तो मोस्टली आई गेस सीई सीई शॉर्ट, राइट? कॉल ऑप्शंस के शॉर्ट मोस्टली हमें बिल्डअप इन दो लेवल्स के बीच में होते हुए दिख सकता है। तो अगर आपको ऐसा बिल्डअप डे और डे बाय डे या फिर वीक ऑन वीक बढ़ते हुए दिख रहा है, आप समझ जाना कहीं ना कहीं सेलर्स ये मन बना चुके हैं कि मार्केट को ऊपर नहीं भेजें, निफ्टी 50 को ऊपर नहीं भेजें। बी रेस्ट अश्योर्ड ऑफ दैट। एंड वाइस वर्सा, अगर शॉर्ट कवरिंग आनी है तो इन्हीं दो स्ट्राइक्स पे आपको मैक्सिमम अनवाइंडिंग दिखना शुरू हो जाएगी। हो सकता है एक दो सेशंस पहले या फिर उसी दिन अगर हम गैप अप्स के थ्रू कुछ गेम खेल रहे हैं तो। एंड वो गैप अप्स भी पॉसिबल है। व्हाई? बिकॉज सीएनएक्स 500 इज अंडर नैरो सीकर इन्फ्लुएंस। सो फॉरगेट अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, जीपीजेड वीपीजेड, हम गैप अप ओपनिंग्स दे सकते हैं एंड सिमिलरली गैप डाउन ओपनिंग्स भी पॉसिबल है। बट गैप अप ओपनिंग्स में ना जीपीजेड होने के वजह से अगर ये ऊपर की तरफ खुल भी जाए, लेट्स से कल की बात कर लेते हैं, बाय टुनाइट या बाय टुमारो मॉर्निंग ट्रम्प अनाउंसेस एवरीथिंग इज सॉर्टेड, गाजा डील क्रैक हो गया, ईरान इजराइल आर फ्रेंड्स नाउ, यूक्रेन रशिया आर फ्रेंड्स नाउ। फ्रेंड्स तो खैर नहीं होंगे, दे हैव सेटल्ड एवरीथिंग फॉर टाइम बीइंग, पॉज हो चुका है, इंडिया से टैरिफ हट गए, आप समझो सब कुछ एक ही रात में होगा। लेट्स अज्यूम दैट। अंडर दैट केस हो सकता है मार्केट सीधा 1-2% ऊपर खुल जाए alongside Nifty. Even then too, Nifty will have to retrace back, do this particular leg, and then again go up. That is 101% sure. एंड अब मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि ये मेरे एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप मेरे साथ ऑलमोस्ट जो लोग 3 साल से जुड़े हैं वो तो ये सब लाइव होते हुए देख रहे हैं। सो नाउ from the experience of almost 3 years, we can say that these things work very, very
यू कैन से स्टिकी, चिपक के चलते हैं सारे चीजें, ठीक है। तो आई होप दिस थिंग इज वेरी मच क्लियर। सिमिलरली नीचे की तरफ इसका थोड़ा क्योंकि ये बहुत ही इमीडिएट, मतलब बोलते हैं ना, चलते 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 लास्ट में इसको प्रेशराइज किया गया है। आप देख सकते हैं ये लास्ट के 3 दिन में ना प्रेशर बना के इसको बेरेज जीपीजेड में डाला गया है। तो कहीं ना कहीं इसका आपका एलसी थोड़ा वाइड हो जाएगा। बट एनी विच वेज हम ये जोन तक जब तक 24,300 नहीं तोड़ रहे ना, 260 से 300, ये 40 पॉइंट का रेंज है, आप ये पकड़ के चलो। ये रेंज तक आपको जैसे ही एक लेट्स से डाउनसाइड मिल रहा है या नीचे की तरफ फॉल मिल रहा है, या ये जोन के नीचे हम तोड़ के मार्केट निफ्टी 50 नीचे जा रहा है, तो गेम इज ओवर फॉर निफ्टी। मतलब फिर सेलिंग प्रेशराइज, सेलिंग का प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ऑल इन ऑल ये पर्टिकुलर क्वार्टर के लिए हमें ऊपर का पता चल गया, नीचे का पता चल गया। अगर हम कंपेयर करके देखें 24,250 से लेके 24,950, हम मोटा मोटी 700 पॉइंट के रेंज में बैठे हैं। ये 700 पॉइंट जब तक हम ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ नहीं तोड़ते, साइडवेज टू बेरिश। So I hope you got the stance very clear for Nifty. We are sideways to bearish, and जो points of trigger है for quarter for the next, you can say 90 days absolute and 61 days to be specific as per our trading calendar. आपको triggers पता चलेगा. Next, we move on to monthly quickly. How much time is left? See, don't type यार. आप ये चीज माइक्स पूछ अभी आप, मैं अभी देख रहा हूँ आपका सीनेक्स 500 का क्वेश्चन, बट एनी विच वेज लीव इट, आई विल एड्रेस इट बाद में। यू कैन अंडरस्टैंड आई कैन नॉट गो बैक राइट नाउ। आप अगर यही चीज माइक ऑन करके पूछते हैं तो मैं अभी आपका नाम भी नहीं ले रहा। अगर आप यही चीज माइक ऑन करके पूछते अभी तक वो चीज हो जाती, राइट। सो लेट अस अंडरस्टैंड फॉर मंथली। अब सितंबर मंथ में देखिए, कोइंसिडेंसली आपका ये लेग एग्जैक्टली सुपर इम्पोज कर रहा है हमारे मंथली बेरिश जीपीजेड के साथ भी। तो नाउ यू नो दिस लेग इज बाय फार द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेग for considering a trend reversal. Yes, you heard me right. I am saying a trend reversal because ये bearish GPZ है। तो अब जब तक हम इसके ऊपर नहीं है, forget about bulls. Simple and straight. क्या है अब हमारा, और भी अगर आपको नैरो डाउन करना है तो आप इसको नैरो कर सकते हो टूवर्ड्स 850 से लेके 830 से 850 पकड़ लो बीच का, 24,850 फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। सिमिलरली आप इसके इसके आजू बाजू की स्ट्राइक्स पर अगर कॉल ऑप्शंस का बिल्डअप देख रहे हैं, इसका मतलब सेलर्स आर नॉट विलिंग टू मेक निफ्टी ट्रैवल ऑन द अपसाइड। स्ट्रेट एंड सिंपल, कीप दिस थिंग पिन्ड, ठीक है। एंड सिमिलरली नीचे की तरफ ट्रिगर्स आर सेम। इसको थोड़ा, अब आपको थोड़ा और स्ट्रेट लाइन करना है तो इसको हम थोड़ा रिफाइन करके देख सकते हैं। लेट मी डू इट फॉर यू। क्योंकि हम क्लोज इन कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको बस खाली ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट थोड़ा और नजदीक ला रहा हूँ। दिस इज योर नजदीक वाला पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। 24,430 से लेके ये पूरा छुप ही गया, एक मिनट, 24,330, ठीक है। 100 पॉइंट का रेंज, 100 पॉइंट का जोन बना है नीचे की तरफ। 300 से 400 पकड़ लो, 24,300 टू 400। इससे नीचे जाएंगे सितंबर में तभी सेलिंग प्रेशराइज हो सकता है, वरना दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट। अगेन रिमेंबर, डोंट गेट सरप्राइज अगर आपको ऐसा भी कुछ होता हुआ दिख रहा है, इधर से एक रिवर्सल आते दिख रहा है, डोंट बी सरप्राइज। क्यों कैसे वो सब आपके सामने है। आई होप सो इट इज वेरी वेरी क्लियर। इन शॉर्ट, जब तक हम इस रेंज के अंदर है, साइडवेज है, इस रेंज के ऊपर गए बुलिश है, ऊपर कैसे जाएंगे इसके थ्रू, और अगर हमको इस रेंज के नीचे गए तो बेरिश है, और नीचे कैसे जाएंगे, सिमिलर टू दिस, स्ट्रेट एंड क्लियर। सारे जोन्स, सारे लेवल्स
सारे पर्सपेक्टिव हमने डिस्कस कर लिए। अगर ऊपर नीचे आगे पीछे जहां जाना है ऐसे ही जाएगा निफ्टी। कीप दिस चार्ट मार्क्ड, ऐसे ही जाएगा, देयर इज नो अदर वे आउट। कूल। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल सेव दिस लिंक एज वेल, ताकि आपको ये रेफरेंस चार्ट दिमाग में रहेगा। आई विल सेव इट, जस्ट अ मिनट। दिस इज फॉर निफ्टी। ठीक है, तो हमारा ये चीज भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, बैंक निफ्टी, द सबसेट। सबसेट से चालू करते हैं फटाफट। वी हैव हाउ मच टाइम रिमेनिंग? 22 मिनट्स। एंड दिस आल्सो क्वार्टरली। अब देखो, एज वी नो 35% ऑफ निफ्टी इज बैंक निफ्टी। ठीक है, तो हमें एक चीज तो पता है कि बैंक्स एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करेंगे, और यू कैन से दे विल एक्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर योर what do you say, nifty getting into momentum, right? फॉर्चुनेटली हमने ये जो लास्ट में डिस्कस किया था इसी रेंज में आके आप देखिए हमारा सीपीआर भी कहीं क्लोज हुआ है। ये वो मे वाला डिस्कशन था, अगर आपको याद हो तो लाइन चार्ट के थ्रू हमने निकाला था, राइट? ये वीसी में रहेगा, आई डोंट नो द डेट, बट इफ एनीवन नोस दे कैन टेल एवरीवन एल्स इन द रूम एज वेल। तो आ जाते हैं वापस इस पे। अब देखिए इसमें एक अच्छी चीज ये है, अब फॉर्मेशंस देखो कल, इसकी फॉर्मेशन क्या है क्वार्टरली की, ये क्लियरली बता रहा है बैंक निफ्टी इज नाउ फ्री ऑफ ऑल दोज बंधन। इस इधर इसके पास बंधन था या प्रेशर था टू कैरी थिंग्स इन अ रेस्ट्रिक्टेड मैनर। इधर आके अब ये बोलते हैं ना, व्हाट इज दैट हिंदी वर्ड, आजाद पंछी, समथिंग लाइक दैट। कूल। हियर व्हाट द थिंग्स आर शोइंग यू और व्हाट द थिंग्स आर टेलिंग यू हियर, एक्चुअल में ये काफी इजी है। इसके थोड़े मार्किंग्स करेंगे ना, आपको इंस्टेंटली पता चल जाएगा। सी, ये और ये, इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते बिकॉज ये बन चुके। अब ये जब तक मार्केट बंद नहीं होता या दुनिया खत्म नहीं होती, ये लेवल्स आपको हिस्ट्री में ऐसे ही दिखेंगे। एम आई राइट? तो अगर हम उस पर्सपेक्टिव से देखें तो ये क्वार्टर में तो हमें एक चीज डेफिनेटली पता हो जानी चाहिए, अबव 55,750 ओनली वी कैन कंसिडर बुल्स टू बी एक्टिव। Hear me out again, bulls to be active, not triggered. ट्रिगर्ड होने के लिए हमें ऑब्वियसली MH4 के ट्रिगर्स चाहिए अबव दिस रेंज, सिमिलर टू व्हाट वी नीड इन CNX 500। सो हम ये बोल सकते हैं कि निफ्टी, सॉरी, बैंक निफ्टी इज इन पार विद CNX 500। अब वो उसको आउट परफॉर्म करता है कि उसके साथ साथ चलता है, ओनली टाइम कैन टेल दैट, बिकॉज विदाउट लाइव प्राइस वी कैन नॉट प्रेडिक्ट एनीथिंग। जैसे मार्केट चलेगा हमें ऑटोमेटिकली पता लग जाए। बट आई होप यू नाउ अंडरस्टैंड व्हाट आर द रेंजेस। तो इसमें तो और कुछ बात करने की जरूरत ही नहीं है, ये दो लाइंस आर वेरी वेरी मच, यू कैन से, डन टू मेक यू अंडरस्टैंड वेयर बैंक निफ्टी कैन ट्रैवल। अब इसको थोड़ा सा और रिफाइन करना है तो हमें आना पड़ेगा मंथली में, एंड हियर द एग्जैक्ट स्टोरी वुड बी नोन। नाउ यू सी व्हाट इज हैपनिंग। अप टिल नाउ CNX 500 का चार्ट देखा, निफ्टी का चार्ट देखा, बैंक निफ्टी का देखा। बैंक निफ्टी आपको बोलते ना प्लेटर में, एक सिल्वर प्लेटर में आपको ये बता रहा है कि आई एम रेडी टू फ्यूल अप, ईदर ऑन द अपसाइड और डाउन साइड। दोनों फॉर्मेशन आर नैरो, दोनों के दोनों। कूल। सो इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड कि आपका करंट, अगर आपको जोन ही बनाना ना, ये आपके जोन बने। डन। अब इधर थोड़ा पार्ट ट्रिकी है, बट हमारे लिए नहीं है, मार्केट के लिए होगा डेफिनेटली, बट हमारे लिए इजी है क्योंकि हम डेप्थ में CNX 500 की बात कर चुके हैं। अब जैसे आप समझो CNX 500 में हमें
क्वार्टरली के परस्पेक्टिव से MH4 या WH4 का ट्रिगर चाहिए था। बैंक निफ्टी में फॉर straight 90 absolute days. Okay, perfect. So रुकावट के लिए खेद है. Your this is continuing part of part two, but due to my laptop it went off. So हम इसको वापस से रिकॉर्डिंग चालू कर रहे हैं. So ये part two का कंटिन्यूएशन है. So starting with the same. So I hope you understood what we are trying to uh, talk for Bank Nifty. अब बैंक निफ्टी में एक चीज बहुत ही क्लियर है. फॉर एब्सोल्यूट 90 डेज आपको अलर्ट लगाना है तो अलर्ट के थ्रू देख लेना. स्क्रीनर पे देखना तो स्क्रीनर के थ्रू देख लेना. ओनली एंड ओनली वन थिंग, सॉरी टू थिंग्स. या तो WH4 का ट्रिगर इन दो जोन्स के बीच में, इधर या तो WH4, इसको हम थोड़ा सा ठीक करके देखेंगे. एंड WH4 या फिर आपका CPR ब्रीच. वो CPR ब्रीच मैं डेप्थ में नहीं बताऊंगा बिकॉज हम बहुत बार बात कर चुके हैं. GPZ हो तो GPZ ब्रीच, नैरो हो तो सिमिलरली आपको DH4 देखना पड़ेगा. ठीक है. एंड एटसेट्रा एटसेट्रा. असेंडिंग हो तो भी आपको DH4 ही देखना पड़ेगा. आई होप इतना तो आपको समझ आ जाएगा, राइट. एंड इधर भी सिमिलरली, इधर के लिए आपको WL4 या फिर CPR का ब्रीच. इधर एक बहुत ही अच्छी चीज है हमारे लिए, बिकॉज मैं ब्रैकेट में इधर बी लिख रहा हूं, इसका मतलब ब्रीच है. ठीक है. क्योंकि रेफरेंस के लिए मैं पोस्ट करूंगा तो आपको समझ रहेगा ध्यान. कूल, डन. ये रहा आपका 90 डेज का गेम प्लान फॉर बैंक निफ्टी. डन. इसके बीच में प्राइस जब तक रहेगा, द ओनली थिंग विच कैन टेल यू इधर आपको ट्रेड लेना है नहीं लेना है, या फिर अगर लेना है तो कहां लेना है, ये साइडवेज में, उसके लिए आपको खाली और खाली डेली पिवट का, मैं DP लिख रहा हूं, इसका मतलब डेली पिवट है. ठीक है. डेली पिवट के ट्रिगर्स पे ध्यान देना, बस. दैट्स इट. एंड दिस इज फॉर 90 डेज, 91 इंक्लूडिंग दिवाली, एब्सोल्यूट वाली. सॉरी, इंक्लूडिंग योर 31st वाले मंथ. ठीक है. 91D लिख देता हूं मैं. एब्सोल्युटली. बस इतना ही सिंपल है बैंक निफ्टी का चार्ट. डन डन. आपको याद होगा हमें ऐसा एक एनवायरनमेंट मिला था इन साइकिल 1, और जब हमें ये चीज मिली थी ना, वो ट्रिगर था साइकिल 1 वालों को अगर रिकलेक्ट हो रहा हो तो, वो ट्रिगर था जब FNO से कुछ स्टॉक्स बाहर आ रहे थे एंड मार्केट में एक ट्रांजिशन आया था ऑफ डिफेंस सेक्टर का. तब रैली, सॉरी, रेलवेज का तब रैली ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लाइक चिंगारी पकड़ी थी, और उसके बाद तो इट वेंट ऑफ रॉकेट. और उस उधर से काफी सारे स्टॉक्स, आपको पता होगा पहले के टाइम पे RVNL एटसेट्रा एटसेट्रा बहुत सारे FNO में थे, सॉरी कैश में थे. एक रैली हो गई, उसके बाद FNO में ऐड हो गए. साइकिल 2, अकॉर्डिंग टू आर साइकिल काउंट, साइकिल 2 में वो ऐड हुए थे. तो मार्केट ने तब क्या स्ट्रक्चर दिखाया था, कुछ ऐसा ही था. तो दिस इज अ प्योर स्ट्रक्चर ऑफ, यू कैन से समथिंग इज बीइंग कुक्ड अप, and these are absolute triggers. मतलब this cannot go wrong for the next 91 days. 101%. और इसके लिए तो मैं बोल सकता हूँ 200%. बस आप जो ये चार्ट पे लिखा है ना, इसको 91 डेज आप फॉलो करो, एंड आफ्टर 91 डेज टेल मी इफ एनी ऑफ वन थिंग गोज रॉन्ग हियर. सो अगर किसी को नेक्स्ट क्वार्टर के लिए अगर ट्रेडिंग भी करना है ना इंट्राडे बेसिस पे, बैंक निफ्टी इज द बेस्ट.
इंस्ट्रूमेंट टू ट्रेड, स्कैल्प करना है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना है, इंट्राडे करना है, बैंक निफ्टी इज योर गो टू इंडेक्स एनी डे, फॉरगेट अबाउट एनी अदर इंडेक्स। जो अपॉर्चुनिटी आपको बैंक निफ्टी दे सकता है ना, वो नेक्स्ट 91 डेज तक, वो अभी तक रिगार्डिंग योर टू इंडाइसेस, अभी मिड कैप बाकी है, तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स में हमें अच्छा खासा एक अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। नाउ दैट इंक्लूड्स कौन से सेक्टर्स है, बैंक्स, ये भी मैं आपको तो मार्क करके रख देता हूँ। बैंक्स पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ जाना क्योंकि रेफरेंस चार्ट है। बैंक्स, एनबीएफसीज, हाउसिंग फाइनेंस या फिनेंसर्स। अब फाइनेंसर्स में आपका गोल्ड फाइनेंस आ जाता है, हाउसिंग फाइनेंस आ जाते हैं, ऑटो फाइनेंस आ जाता है, मतलब जितने भी स्टॉक्स है, इवन गवर्नमेंट के एनर्जी वाले फाइनेंस कौन है, वो पीएफसी, रेक, देन योर रेलवे के जितने फाइनेंसर्स हैं, आईआरएफसी, फिर आपके डिफेंस के जितने फाइनेंसर्स हैं, हाउसिंग के जितने फाइनेंसर्स हैं जैसे हुडको एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लाइकवाइज, ठीक है, मतलब ये फाइनेंसर्स, फाइनेंसर्स, ईआर कर रहा हूँ मैं शॉर्ट में ताकि हमें अच्छे से पता रहे। ये मेजर आपके सेक्टर्स रहेंगे फॉर द मंथ ऑफ, सॉरी, फॉर द होल क्वार्टर। आप पूरे 90 के 90 दिन ना इसमें आपको अगर कोई भी प्राइस एक्शन, पिवट एक्शन, आपका कोई भी कॉन्सेप्ट जो आप फॉलो कर रहे हो, उसको आप पिवट के साथ कॉन्फ्रेंस में लगा के अगर आपको कोई भी ट्रेड अपॉर्चुनिटी दिख रही है, टेक इट, डोंट थिंक ट्वाइस। ठीक है, या तो देखिए अगर आपका एनालिसिस सही हुआ, मोस्टली अब आपका रॉन्ग होने के चांसेस कम हो गए, जस्ट कीप दिस एज अ रेफरेंस, एंड स्टॉक्स को आप देख सकते हैं आउट परफॉर्म कर रहे हैं कि अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। कूल, तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैं एक और चीज मार्क कर देता हूँ, दिस इज योर क्यू, दिस इज योर एम, ताकि आपको जोन का मालूम पड़ जाए। एंड सिमिलरली दिस इज योर एम, दिस इज योर क्यू। वन ऑफ द बेस्ट चार्ट्स फॉर दिस ईयर आई कैन गिव इट टू बैंक निफ्टी। सबसे इजीएस्ट चार्ट है, और इससे अच्छी बात क्या हुई, आपको 91 डेज के लिए एक प्लान मिल चुका। सो आई होप दिस थिंग्स आर वेरी वेरी क्लियर। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, विल शेयर इट विद यू। One more thing, guys. I know many of you are sharing our insights, messages, charts, and recordings as well. तो अगर कर भी रहे हो तो at least acknowledge us, because there are some instances where people are messaging us back with some bad, you can say, replies, जो कि हमें बाद में पता चलता है कि हमारा उसका कोई लेना देना ही नहीं था. It is coming from our group but not through me स्पेसिफिकली, राइट? तो अगर आप कर रहे हो तो एटलीस्ट अक्नॉलेज आवर ग्रुप, ताकि उनको अगर कुछ टेस्टिफाई या करना हो या कुछ भी डाउट आउट रहते तो एटलीस्ट आपसे पूछ सकते हैं, या फिर हमारे पास डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं. सो आई एम नॉट सेइंग दैट डोंट डू इट, क्योंकि मैं करने से रोक नहीं सकता. इट इज अप टू द इंटेंशन ऑफ द पीपल, एंड आई नो, सी, यू कैन नॉट से कि आपको पता नहीं चलेगा या नहीं. आई कैन डेफिनेटली टेल यू हु इज डूइंग व्हाट, कौन क्या कर रहा है. टेलीग्राम इज वेरी स्मॉल फॉर्म. सो बस इतना ही बोलूंगा मैं, और कुछ नहीं. करना है करो, कौन मना कर रहा है? मैं तो, आपने मुझे कभी ऐसा बोलते नहीं सुना होगा कि डोंट शेयर इट, दिस दिस, ये मत करो. ओपनली करो, आप, मैंने कभी मना नहीं किया, बट आप अक्नॉलेजमेंट दे के करो, ताकि जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो आपके थ्रू ही टेस्टिफाई हो, या फिर अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो मेरे पास भेज दो. राइट गाइस? So moving forward, last index for our analysis is mid cap. Now comes a very important thing, structure. अभी तक तो हमने मोमेंट के बारे में, मोमेंटम के बारे में बात किया है. अब बारी आ गई स्ट्रक्चर की. ये बताएगा कि अब मार्केट एग्जैक्टली करेगा क्या, ऊपर नीचे आगे पीछे, राइट? डोंट टेक इट अदरवाइज. सो कमिंग ईयर, इधर देखिए,
वन थिंग इज फॉर श्योर, चार्ट पे लिखा हुआ है, चेक दिस आउट, वेरी जीपीजेड, लेमैन्स एक्सप्लेनेशन। जब तक ये नहीं तब तक बुल्स बिग क्रॉस, बिग क्रॉस। आई डोंट थिंक आई नीड टू फर्दर एक्सप्लेन इट आउट, ठीक है। इसके ऊपर जाने की जरूरत भी नहीं है हमें, जो जैसा है रहने दो। जब तक ये नहीं होगा तब तक तो भूल जाओ कि ये क्वार्टर में बुल्स को वापस कम बैक करते हुए भी देख सकते हो। बहुत टफ है ये, देखिए क्वार्टरली सीपीआर है। आपको लग रहा होगा कि लेग झटके में बन जाएगा, पॉसिबल है, क्योंकि हम एक ऐसे, हम नीचे भी इसी की वजह से गए हैं, न्यूज बेस्ड मूव्स पे। ये फंडामेंटल डाउन मूव नहीं है, समझो, ये एक टेक्निकल डाउन मूव है बेस्ड ऑन न्यूज, ड्यू टू टैरिफ वॉर्स एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अगर वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, इमीडिएटली मार्केट अपसाइड भी दे सकता है। वो पर्सपेक्टिव से ये लेग बहुत इजी है। बट अगर हम नीचे की तरफ कंटिन्यू कर दे तो फिर ये तो आप भूल ही जाना। तो ऑल इन ऑल अभी तक हम क्या देख रहे हैं, हमारा मोमेंटम CNX 500 पूरा का पूरा मार्केट जो है, ये आपका पूरा प्लेग्राउंड है। आपके स्कूल पीटी टीचर ने बोला है कि इधर से बाहर जाके भी आप खेल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बेल बजते सब वापस अंदर आ जाओगे। बट आपकी जो क्लास टीचर है या फिर मॉनिटर है, ठीक है, जो सबके लिए रिस्पॉन्स, एक पर्टिकुलर डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, समझो 4 सेक्शन खेल रहे हैं, उसमें से मॉनिटर्स ने ये बोल दिया कि भाई बाहर तो नहीं जा सकते, बट ये एरिया तक आप अलाउड है। दूसरा बोल रहा है आप ये एरिया तक आ सकते हो, तीसरा बोल रहा है आप इतने एरिया तक खेल सकते हो, चौथा बोल रहा है आप इधर तक ही खेल सकते हो। तो अब आप किसकी सुनोगे? पीटी टीचर ने तो बोल दिया खेल लो, मॉनिटर बोल रहा है खेलो, बट इतने तक ही खेल सकते हो, बाहर भी जाना है तो इतना ही एरिया कवर करना है, इससे आगे नहीं जा सकते। मतलब लिमिटलेस होके भी आप लिमिट में काम करोगे। करेक्ट गाइस? सो इसको हम वापस से हटा देते हैं फटाफट। तो हियर इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू अबाउट। सिमिलरली डाउन साइड में वन थिंग इज वेरी क्लियर, ये दिस इज योर रेंज L3, एंड ऑब्वियसली इसको मुझे मार्क करने की जरूरत नहीं है, अपसाइड के लिए तो यही होना चाहिए। अब मैंने इधर ये क्यों मार्क किया है मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। कूल, जस्ट अ मिनट। ये लो है, सॉरी, L3 इधर है, माय बैड। ये लो और L3 मार्क करना है। दिस इज ब्लैक, टाइम 3 minutes to do it. दिस इज आल्सो ब्लैक, ठीक है। तो ये आपका डाउन साइड का ट्रिगर हो गया फॉर सीने। स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर साइडवेज टू बेरिश है, ध्यान रखो। मोमेंटम भी वही है, स्ट्रक्चर भी वही है। तो मार्केट को अग्रेसिव ट्रिगर्स चाहिए फ्रॉम बुल्स टू गो ऑन दी अपसाइड, रिमेंबर दिस। फटाफट आते हैं इसको रिफाइन करने के लिए मंथली में। नाउ सी, मंथली में चीजें बहुत ही क्लियर हो गई है। ये थोड़ा लेग और ऊपर चला गया, तो इसको आप अब समझ सकते हो, यही लेग आपको इधर के लिए भी चाहिए, राइट। अंटिल देन ये मंथ में तो हम ऊपर नहीं जा सकते। बट इधर एक अच्छी चीज ये है कि हम बहुत बहुत नैरो रेंज में कंपेयर टू द अदर इंडाइसेस। स्ट्रक्चर डेफिनेटली नीचे की तरफ साइडवेज साइडवेज टू बेरिश हमें पॉइंट आउट कर रहा है। बट अब देखिए हमारे पास नीचे की तरफ भी बहुत कम एरिया है और ऊपर की तरफ भी बहुत कम एरिया है। तो चांसेस ये है कि स्ट्रक्चर एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, देगा फॉर श्योर, ठीक है। और वो पॉसिबल मोस्टली जो मुझे लग रहा है ना, वो बैंक निफ्टी एंड उसमें जितने भी अपने इंडेक्स अभी डिस्कस किए हैं, वो इंडेक्स के स्टॉक्स आप मिड निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप में फिल्टर करके रख सकते हो। वो स्टॉक्स के थ्रू आपको एक अच्छा खासा अप मूव या डाउन मूव दिख सकता है। वो कैटालिस्ट बन सकते हैं मिड कैप के लिए टू ब्रेक ऑफ और ब्रेकआउट। ब्रेकआउट के लिए तो आपको पता है वन एंड द सेम थिंग। ब्रेक डाउन के लिए भी आपको इधर आके ट्रिगर देखने पड़ेंगे, WL4 के, ये जोन में, ठीक है, दिस जोन। मैं इधर W लिख देता हूँ, WL4।
स्ट्रेट एंड सिंपल, बहुत ही इजी है ये भी। तो हम बहुत ही साइडवेज हैं, एंड कल से हम साइडवेज फेज में एंटर कर सकते हैं। बट जब तक हम आप समझो, सिमिलर गोज विद बैंक निफ्टी एज वेल, जब तक हम साइडवेज रहेंगे ना, अगर हम ये जोन जब तक हम क्रॉस नहीं करें, इसको मैं लाइन का कलर बदल देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि हम क्या कर रहे हैं। जब तक हम इधर है ना, इसके अंदर, सिंपल है, आपको बस सिर्फ और सिर्फ डी डेली पिवट्स का ट्रिगर फॉलो करना है। इसके ऊपर आपको पता है, इसके ऊपर आपको WH4 चाहिए। दिस अगेन इज वैलिड फॉर 91 days straight. Cool guys, so we come to an end for analyzing the next quarter and next month. Full 91 days का हमने in depth स्ट्रक्चर स्टडी कर लिया इन हार्डली एन आवर। Cool guys, so आज इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीसी में देखते हैं। सो बाय बाय, हैव अ गुड नाइट, मीट यू इन द नेक्स्ट वन।